میں پہلے سمجھنے سے قاصر ہوں کہ حق کس کو کہتے ہیں. جنہوں نے 70 برس 370 کے نام پر یہاں ووٹ لیے. مجھے یاد ہے جب مکھن لال فوجیدار جی یہاں آئے، اب وہ فوت ہو چکے ہیں. وہ کانگریس کے بنیادی رکن میں سے ہیں، ایک پلر رہے ہیں کانگریس کے. تو میڈیا والوں نے ان سے سوال کیا سری نگر میں، کہا کہ بھارتیہ جنتا پارٹی نے یہاں پر 370 کو ہٹایا، آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ وہ ہنس پڑے، کہا ہم نے کیا رکھا تھا اس میں، یہ تو ہم نے ختم کیا تھا. اس میں کیا تھا ہی جو ایک ختم کر دے. تو صرف کور تھا، اندر سے یہ خالی تھا. نمبر 1. نمبر 2، میں پوچھنا چاہتا ہوں ان سے جنہوں نے 370 کے نام پر یہاں کے لوگوں کو، اس قوم کو یرغمال بنایا اور پھر ووٹ لیے. شیخ محمد اللہ صاحب بہت بڑے یہاں نیتا رہے ہیں، احترام ہے ان کا، اللہ ان کی مغفرت کرے. انہوں نے اوپن ہاؤس میں کہا ہے کہ یہ تو کوئی قرآنی آیت نہیں ہے 370، تو یہ عارضی ایک رشتہ ہے جو کبھی بھی ٹوٹ سکتا ہے. یہ تو ریکارڈڈ ہے، یہ لائبریری میں ہے. تیسرا، یہ میں سوچ رہا ہوں کہ کیا 370 کچے داغوں کا ایسا رشتہ تھا جس کو پین کے نوک کا استعمال بھی نہیں کیا گیا. ہٹ گیا تو ہٹ گیا. تو یہ تو اتنا کمزور تھا یہ رشتہ، یہ آرٹیکل اتنا کمزور تھا. یہ سوال میں ان سے کرنا چاہتا ہوں جنہوں نے یہ رشتہ بنایا تھا اور جنہوں نے یہ الحاق کیا تھا اور جنہوں نے یہاں پر اس نام پر ووٹ لیا. آپ کی عزت، میری عزت، 370 یہ ہمیشہ کرتے آئے ہو. لہذا لوگ جانتے ہیں، آج ہر ایک سیاست جانتا ہے. یہاں کا قوم، یہاں کے لوگ پڑھے لکھے ہیں، مہذب ہیں، جاننے والے ہیں اور اصل اور غلط میں فرق کرنا جانتے ہیں. اور یہ بھی اظہار آج کرتے ہیں کہ کیا کھویا کیا پایا، کس نے کیا کیا، کس نے کیا لایا. ہر ایک جگہ، گاؤں شہر چرچا ہے کہ اس سرکار نے، مودی جی نے ہمیں امن دیا، چین دیا، سکون دیا. آج یہاں کا نوجوان پتھر لیے ہاتھ میں نہیں ہے، آج یہاں کا نوجوان بندوق لیے ہاتھ میں نہیں ہے. آج آپ دیکھیے کہ جو نوجوان یہاں گمراہ کیے گئے، چاہے بندوق اٹھا کر یا پتھر اٹھا کر. خاص کر میں یہ کہوں گا کہ 2008 سے جب لینڈ رو کا معاملہ ہوا، 2008 سے لے کر 2019 تک اس نوجوانوں کو پتھر بازی میں استعمال کیا گیا، گمراہ کیا گیا. میرا سوال یہی سے اسٹارٹ ہوتا ہے کہ اسی درمیان 2008 سے لے کر 19 تک بہت جگہ پہ گیا، خاص کر کے ساؤتھ کشمیر، نوجوانوں کے خلاف میں کیسز لادے گئے، جس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. کیسز ہیں، ان کے نظر میں یہ سب سے بڑا ظلم ہے. دیش کے الگ الگ حصوں جیلوں میں قید ہیں. اس پہ آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا ان کو ایمنیسٹی دے کر کے باہر کیا جائے؟ آپ کی کیا رائے ہے جن یواؤں کے اگینسٹ میں کیسز لادے گئے ہیں؟ میں بار بار کہتا ہوں، آج بھی میں نے تقریباً 15 جگہ تقریریں کی. میں نے نوجوانوں سے کہا، جن حکومتوں نے آپ کو داغدار بنا دیا،
जिन हुकूमतों ने आपको गुमराह कर दिया अपने इक़्तिदार की खातिर, अपनी कुर्सी की खातिर, अपने अगराज़ मकासद की खातिर, वो यही चाहते थे कि ये यहाँ का नौजवान खराब हो जाएंगे, यहाँ के तालीमी इदारे तबाह हो जाएंगे, यहाँ के बाकी इदारे तबाह हो जाएंगे, क्योंकि उनको इसमें मजा है, उनको बर्बादी में मजा है। मैं इनसे कहता हूं कि जो छोटे छोटे FIRs हैं, जो छोटे छोटे केसों में FIR में मुलविस हैं, भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि जिस नौजवान का कश्मीर में मुस्तकबिल तारीख बनाया गया है पिछली हुकूमतों ने, हम आहिस्ता आहिस्ता वो उनका मुस्तकबिल ताबनाक बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे। उनके ये छोटे छोटे FIR खत्म करके एमनेस्टी देंगे। देखिए, सीधी सी बात है, अगर किसी ने कत्ल किया है तो एमनेस्टी कहां से, उसके लिए कानून है। मगर मेरी गुजारिश है, मेरा निवेदन है अपनी पार्टी से, हुकूमत से, जो ये चाहते भी हैं कि यहाँ के नौजवानों को एमनेस्टी देंगे ताकि वो अपना मुस्तकबिल संवारे, तरक्की की राह पर गामजन खुद हो जाए, रोजगार कमाए और रोजगार के वसाइल भारतीय जनता पार्टी फराहम करे। ये भारतीय जनता पार्टी चाहती है। इसी से एक और सवाल कि ठीक है, आपने युवाओं को एमनेस्टी दी है, एक और सवाल यह भी कि उन लड़कों का क्या दोष जिनके दादा या कोई फूफा चाचा परिवार में जो भी रिश्तेदार होंगे वो मिलिटेंसी से कभी जुड़े रहे, लेकिन अगर वो सरकारी नौकरी के लिए जाएंगे तो पुलिस का सर्टिफिकेट अगर उनको चाहिए बहुत वो नहीं मिलता है। इसके लिए आपके पास कोई सोल्यूशन है? क्योंकि आपकी सरकार तो केंद्र में भी है, अभी यूटी है, आप चाहें तो एक मरतबा में ये सारी चीजें खत्म कर सकते हैं। पिछली बार भी ऑनरेबल होम मिनिस्टर ने कहा कि अगर किसी का रिश्तेदार मुलविस है कहीं पर और दूसरा रिश्तेदार NOC के लिए, नौकरी के लिए, पढ़ाई के लिए, हज के लिए कहीं पर अप्लाई करता है तो हम उसमें देखेंगे कि उसमें एमनेस्टी कैसे हम दे सकते हैं और उनको इसमें उनकी सजा उनको नहीं मिलेगी। जो मुलविस हैं, जिनने बंदूक उठाया है, जिनके खिलाफ यहाँ केसेस हैं, बाकी चीजें हैं, जो पाकिस्तान से जिन्हें बंदूक लाई है, तो अगर उनके रिश्तेदारों में से कोई ऐसा है जिसको ये मुश्किलात हैं, जिसको ये प्रॉब्लम है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा है कि उसमें हम खुद देखेंगे और एमनेस्टी मिलेगी उसमें। देखिए, आपकी सरकार से खासकर प्रधानमंत्री मोदी कल आए, अमित शाह हैं, जो कह रहे हैं कि हम टेरर अंतिम सांसें गिन रहा है कश्मीर में। ये आपके पास, आप लोगों के पास इंफॉर्मेशन होगी कि कितनी अंतिम सांसें ले रही है, क्या स्थिति है। तो क्या इस पर बातें हुई है कि हम एमनेस्टी देंगे, उन बच्चों को हम NOC देंगे, अगर वो नौकरी करना चाहें तो उनको नौकरी में दिक्कत नहीं होगी, वो बाहर अगर जाकर पढ़ना चाहें तो बाहर जाने देंगे। इस पर बातें हुई है क्या? डेफिनेटली। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की देन है पिछले 5 वर्षों से। आप देखिए बदलाव कितना है, कितना बदलाव आया है, कितना यहाँ हालात कितने अच्छे हुए हैं। यहाँ पर हर एक आज छोटा बड़ा नौजवान, यहाँ हमारी माएं बहनें बेटियां चैन की सांसें ले रहे हैं। यह अमन है जहां पर आज इस वक्त हमें काकापुरा उखू में यहाँ जानवर भी पार नहीं हिला सकता था। वो आप देखते हैं हमारी 50 गाड़ियां 60 गाड़ियां हैं, भारतीय जनता पार्टी का झंडा इस पर लहराते हैं। और आप देखिए बदलाव कितना है। और ये नौजवान चाहते हैं, लोग चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, इसलिए कि हमें एमनेस्टी मिले, यहाँ पर तरक्की हो, यहाँ पर खुशहाली हो, यहाँ पर रोजगार के मौके फराम हों, यहाँ पर बाकी चीजें जो इस समाज के लिए, माशरे के लिए तरक्की की राहें हैं, वो गामजन हो। तो भारतीय
खुद आपने सब कुछ एनालाइज किया होगा अब, क्योंकि अब प्रचार एक अंतिम दौर में अब खत्म ही हो गया प्रचार, हम मान के चलें। इस पूरे प्रचार के दरमियान क्या आपको यह एहसास है कि आप मुकाबले में हैं या जीतने की स्थिति में हैं? बिल्कुल सही। देखिए, अपनी भी पहचान है, लोग जानते हैं, मेरे वालिद को भी जानते हैं, जिन्होंने उम्र भर लोगों की फलाह बहबूद के लिए काम किया है, मजलूमों के लिए काम किया है, बेकसों बेबसों गरीबों के लिए काम किया है। उन्होंने उम्र एक बड़ी सियासी पार्टी में यहाँ गुजारी है। वो बहुत बड़े स्कॉलर, राइटर और एजुकेशनिस्ट थे, जिन्हें तकरीबन 100 किताबें लिखी हैं, बहुत पढ़े लिखे थे, और उनको 2005 में मिलिटेंट उन्हें शहीद कर दिया है। लोगों को पता है कि शौकत गयूर एक दियानतदार है, पुरखलूस है, और लोगों के लिए दर्द शौकत गयूर के सीने में है। लोग वोट करेंगे, जरूर वोट करेंगे, मगर एक चीज मैं कहना चाहूंगा कि अभी भारतीय जनता पार्टी यहां जन्म ही ले रही है, तो अभी ये तिफली मकतब में है। लोग कम सामने आते हैं, मगर बैक में चाहते हैं कि हम भारतीय जनता पार्टी को वोट करें। भारतीय जनता पार्टी का कहीं से भी कैंडिडेट है उसको वोट करें। और खासकर अगर मैं अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी की बात करूंगा तो लोग चाहते हैं शौकत गयूर को वोट करें, ताकि वो हमारा नुमाइंदा बन के जाए, हमारी तर्जमानी करे, इस नौजवान की तर्जमानी करे। मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा सिर्फ आहो फुगा, मैंने इस कॉन्स्टिट्यूंसी में देखा सिर्फ लोगों के मामलात और मसाइल, और वो रो रहे थे। उन्होंने कहा हमारे वोटों से हमने लोगों को पार्लियामेंट में भेजा, असेंबली में भेजा, मगर उनकी परछाइयां हमने अभी तक नहीं देखी है। मतलब खस्ता हाली है दिलों की। लोग आहें भर रहे हैं, सड़कें खत्म हैं, कहीं गली कोचे खत्म हैं, पानी के वसाइल नहीं है, बिजली के वसाइल नहीं है। तो ये कहते हैं कि पिछली हुकूमतों ने यहां पर बर्बादी के सिवा कुछ नहीं दिया। आज ये चाहते हैं कि हम शौकत गयूर को वोट करें, ताकि हमारे जो मामलात हैं, हमारे मसाइल हैं, वो शौकत गयूर जो बेदाग है, जिसने पिछले 19 बरस से कोई भी साबित नहीं कर सकता है मैंने रुश्वतस्तानी की है, मैंने किसी पैसे लिए हैं, मैंने नौकरियों पर पैसे लिए हैं, मैंने किसी से चापलूसी की है, झूठ कहा है। ये मैं अक्सर कहता हूं कि अगर मैंने इस तरह की कोई बात की है, कोई काम किया है, आप मुझे सजा दे सकते हैं। इनको पता है ये बेदाग है, और हम इसको वोट करेंगे ताकि ये हमारी खिदमत करें। मैं लोगों से कहता हूं आप वोट करें या न करें, मैं आपकी खिदमत करूंगा दोनों सूरतों में जिस तरह मैं करता हूं। मगर नौजवानों के लिए मेरी ये मैसेज है कि आज एक बार अपने घुटनों पर खड़े हो जाओ, टांगों पर खड़े हो जाओ, अपने मुस्तकबिल को संवारने के लिए, इस माशरे को संवारने के लिए, इस तमाम सोसाइटी को, समाज को संवारने के लिए। जो मामलात हैं, मुश्किलात हैं, जो रोजमर्रा की जिंदगी के लिए सामान मयसर होना चाहिए, उसके लिए हम काम करेंगे, इकट्ठा काम करेंगे, और ये तमाम मामलात और मसाइल हल करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।